Good evening, everyone, and let us start the this live webinar for all of you because I get so many times certain questions. Some are new and some are all repeated. But before I go to question and answer session, let me brief you what exactly I am doing, what I was doing, and what I am now doing. आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या करता था. If you, some of you have seen my first video on trading, I make videos on travel and other next one is trading. So my first trading video was on 9th August 2000. I think before that one was there, but that was not significant. So 9th August 2020. So that time I started doing option wheel strategy, and it is the classic method that I was doing. I was selling a put, which is called cash secured put in option wheel language. And that means that I have got enough money to buy the share if that put becomes in the money. And as per the classic option wheel strategy, I was buying the full lot, then I was trying to sell the call. And what I was going to tell you that that time I faced certain problem. What happened when I was buying the share in full lot, my money was getting blocked. समझ गया ना, अगर मैं पूरा ब्लॉक खरीद लूँ 7-8 लाख रुपया मेरा ब्लॉक हो गया. Then I was selling call. Okay, that was also okay. But problem arose जब मेरा जो शेयर था ना, that price went down too much below the my buying price, average buy price. तब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, so that I was not able to sell any call because the price, say at 400 rupees average, I bought the share when the price was 430, 440 and it became in the money. I have to buy the full lot. So my 7-8 lakhs is blocked. First few months I was able to sell a call. But when that 400 becomes 200, that is just around that corona time. So that time it was extremely difficult for me to sell a call because I was not getting गुड प्रीमियम. एकदम 10 पैसा 15 पैसा 5 ऐसा 15-20-25 पैसा का मेरे को प्रीमियम मिलता था. Then this idea came. Two ideas. One is staggered buying. You have seen my videos on staggered buying. Then I came out with that was the new discovery by me because it was because I was continuously working on that single thing. So new ideas came, and that then I told something, a cash secured covered call short strangle. तो इसमें भी प्रॉब्लम रहा. Why? Because here I was buying a cash secured put and also selling a call and buying few shares. That is cash secured covered call short strangle. Strangle में क्या होता है? When somebody does a strangle, it means sell a call, sell a put, and you don't have to buy any share. That is strangle. But in my case, the strategy which I was adopting, उसमें I was buying some share. So now what happened? उसमें problem क्या हुआ? 4-5 months back, there were a sudden gap downs and all those things happened. And I found that my cash secured put is showing big losses. तो उसके लिए मैं क्या करूं? Then I decided that I should completely switch to bull call spread or bull put spread. One is a debit strategy, one is a credit strategy. Credit strategy मतलब आपके पास प्रीमियम आ जाएंगे कुछ. डेबिट स्ट्रेटेजी मतलब आपके पास कोई प्रीमियम आएगा नहीं. ठीक है ना? So that is a debit. Rather आपको कुछ प्रीमियम आपका जो टोटल अवेलेबल कैश है उसमें से निकल जाएगा. So that is what I am doing. फायदा इसमें यही फायदा हुआ कि मेरा जो अनलिमिटेड लॉस बड़ा लॉस होता था ना, वो होना बंद हो गया. सो दैट इज द रीजन व्हाई लास्ट ईयर, अर्लियर ईयर्स, out of 12 months, 1 month or 2 months I was making loss. 2 months on average I was making loss. So, but you have seen that last year, to 2023-24, that financial year where I got more than 62% return, not a single month I incurred any loss.
And my lowest return was the 2.17 in the month of probably May, and thereafter it continues to give me a very good return, which is more than 4% in 12 months. In fact, it is 5% on an average. It was 62%. And this year also, first month, that is April, I got about more than 5%. That I have said. That I have said. And this month, till date, just now, आज के दिन का अगर मैं हिसाब लूं, my return has already been 3.16%. In spite of it's the election month, there are so many uncertainties are there, and still, from the beginning of the month, आज के दिन, still the Nifty is in negative, but I could get money. Why? Because two things I am doing. One is I am always watching whether I have got enough capital, because many of my calls are getting in the money. So many of my calls are getting in the money. I need more cash. So at times, what I am doing prematurely, I am closing my calls and profit from equity. It is, yeah, I am getting good profit from equity. You might have seen few days back from Power Finance Corporation. I got about 70,000-80,000 from equity profit, but my loss from derivative was about 40,000 or something, 45,000. In total, I was making profit. But why I did that? Because by doing that, I could release 12 lakhs capital, which I am utilizing it now in shares like HAL, shares like BEL, shares like Coal India. They're all going up. I do not know why, but last 3-4 days I am saying all the public sector companies, which are nowadays I am having a lot of them. Like I have got a BEL, I was having PFC, I have got a BHEL, I have got Hind Copper, and copper price is all time low. So why I am making profit? I am not going to the usual blue chip shares. I am not trading in any of the so-called blue chip shares. I do not have position in Reliance. I do not have position in ICICI Bank. I do not have position in HDFC Bank. I do not have position in HUL, or I do not have position in Asian Paint. They are all-time blue chips for not today, for 30, 40 years, 50 years. हमेशा वो लोग निफ्टी 50 में रहे हैं, most of them. So why I am not investing in them? Why not I am taking trades in them? The reason is that I am not getting enough premium from them. So I am always in the lookout for the shares. Normally around the result. If I am convinced a very good result will be there, I take share. Just recently, 3-4 days back, just before the HL result could come, you have seen me taking position in HAL. What I did a bull put spread, 4,000 level and 3,800 level. Then I sell a call at 4,500. I never expected that next day result will be so good that the price will go much beyond 4,500. But a systematic trading that I am doing, I had placed GTT for all the 300. Initially I bought 50 shares. When it went up by 30-40 points, I bought another 50 shares on the same day. Then next day, my 5,300 GTT got executed. Then when it becomes, very quickly it became 4,300 got executed, and very soon it became 4,500, balance also got executed. So all 300 shares were executed, for which my 12-13 lakhs, because I got money from PFC, I had spare money, so without any botheration, I got them. Now, some people ask me question,
इज देयर एनी फॉर्मूला? भाई कब लेना है? भाई इट इज योर एक्सपीरियंस. देयर इज नो हार्ड एंड फर्स्ट रूल at what level how much you should buy and how much you should not buy. Only condition is that if the share price is going down, don't buy any share, don't add any share. But if it is going up, you think whether the result is so good, the share will rocket like HL, or share will go up, but gradual manner. In that case, you need not be very aggressive. You buy certain shares at different level. If I tell you after 50 point or after 100 point, you will be exactly doing that. No, just use your experience. Just use, because nowadays I think in my Telegram group, you people are doing very good, because जैसे कि मुझे खबर मिल रहा, the way you are giving me feedback, so that way हर चीज के लिए सवाल करने का कोई जरूरत नहीं है. आप सोचो ना, मेरे पास 200-300 पॉइंट्स है कॉल, तो मैं उसको व्हाट लेवल आई शुड टेक. बट ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग. व्हेन इट इज गोइंग डाउन, डोंट बाय एनी शेयर, एंड व्हेन इट इज गोइंग अप, keep 30 to 35% share to be bought at the call. When it reaches call, that time only be purchased. Don't buy it beforehand. क्योंकि आप बीचों बीच खरीद लोगे, then share price will go down and your money is blocked, and you will face the same problem which I was facing 2-3 years ago. But still, after your call becoming in the money also, that may happen. But please note, if it is a good share, it will come up. Today, I got a news that G Entertainment, Jill, it came out with a very good result, and price has gone up by some 7-8 rupees. And I'm not going to sell. I told somebody that I made a mistake. A lot of money, मेरा 2000, the lot is 3,000 and I have got about 2,000 shares. My money, I'm not able to sell any call because my average price is about 260. अभी 160 में मैं 150 में मैं कहाँ कॉल सेल करूँ? बस भूल जाओ. It is just like investment. I told each one of you, I write in my tweet, I write in my postings that it is a investment strategy. अगर अच्छा शेयर है, एंड नेचुरली अच्छा है, बिकॉज आउट ऑफ 182 F&O स्टॉक्स, उसमें कौन सा शेयर है कि वो खराब है? इक्का दुक्का ऐसा मिलेगा, और जिसका भी खराब शेयर हो ना, इट विल बी फॉर टाइम बिंग. सम कंपनी विल ऑलवेज आउट ऑफ 183, 15-20, 15-20% तो खराब क्वार्टर जरूर दिखाएंगे आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर गुड. देन सिलेक्शन का बारे में मैं बताया, जो मैं सॉरी आई डाइवर्स्ड एक्चुअली. सिलेक्शन के लिए आई यूज स्क्रीनर which is there in the Sensible, जो who has got Zerodha, you know, it is free for you. So आप उसको यूज करके देख लीजिए कहाँ आपको ज्यादा मिल रहा है, कहाँ आपको प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है. कैसा पता चलेगा प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है? बिकॉज यू विल फाइंड दैट इन द स्क्रीन ATM IV is high if it is more than 40 in today's market. When the VIX is 10-11, you cannot find many stock above 40. That time will come down to 33-35 is also okay. But if it is more than 40, nowadays you can see, recently I shared a screenshot where there are very good shares are there, but at the same time it also included Idea. I'm not going to trade in Idea. अभी तक वो लॉस में है, तो I will not be touching that, but I will be touching only those share, those good share, those which are visible, जहाँ थोड़ा there is not much problem of a liquidity. So these are the thing I check, and I'll also show you how today I have taken some trades. Let me share my screen. Please pardon me अगर मैं थोड़ा कुछ गलती करूं तो. Now I go to trade. कैसा ट्रेड लेता हूं देख लीजिए. देखिए ये ट्रेड में गया मैं, ये स्ट्रेटेजी बिल्डर है, ठीक है. यहां मेरे को बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी. नाउ आई विल पुट इट हियर. मान लीजिए मेरे को बेल का रिजल्ट 20th को आना है.
और मुझे जितना खबर लग रहा है, जैसा कि हाल का देखने के बाद बेल का जितना ऑर्डर बुक है, आई अंडरस्टैंड बेल विल कम आउट विद अ वेरी गुड रिजल्ट। ना अभी मुझे करना क्या है, ये जो देख रहा ना, जो बक्सा बक्सा, ये सब मेरा ऑलरेडी पोजीशन है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है। आप मान लीजिए अभी चल रहा है 260, 258, आपको दिख रहा है अभी? आई डोंट, मोबाइल में दिखेगा नहीं, ये 258.80 है। ये तो मैं दिख रहा है 250 सर। का, यस मैं, यस दिख रहा है। हाँ, विजिबल मैं सर। 258 का कॉल बाय कर रहा हूं। मैं इसीलिए बाय कर रहा हूं कॉल, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर विल बी ए फ्लेयर अप इन शेयर। ठीक है, तो इसलिए मैं बाय कर रहा हूं। जब बाय कर रहा हूं तो देखिए यहाँ का जो पिक्चर जो दिखा रहा है, Sir, देखिए ये बाय 1 कर minute, लिया। sir. I have a question. 1 minute, sir. I have a question. Sir, हाँ, on there is a in number of calls and puts are available. Why on based on what you have selected that 260 calls, sir? आई फील बेल इज गोइंग टू डू इमीडिएटली गुड, बिकॉज द रिजल्ट इज कमिंग ऑन 20th, जिस दिन के बॉम्बे का मार्केट छुट्टी है। हमारा मार्केट Okay. खुलेगा 21 को। अब 20 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट बहुत बढ़िया आने का मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो, आई मे गो रॉन्ग, प्लीज रिमेंबर, बट दैट इज व्हाई आई एम डूइंग पीसीएस, आई एम नॉट डूइंग ए कैश सिक्योर्ड पुट। सो आई विल बी लिमिटिंग माई। अब देखो क्या करने वाला हूं इसका। Okay, okay, sir. ये 158 है, तो मैं 150 का कॉल बाय कर लिया। देन नॉर्मली मैं 160 का कॉल सेल करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा, और ऑलरेडी ये 258.80 है। देन आई विल सेल 270 कॉल। 270 किधर गया भाई? हाँ, 270 का जो कॉल है उसको मैं सेल करूंगा। नीचे वाला को बाय किया, इसको सेल करा। आप देख लीजिए, ये तो चार्ट बन गया। इसमें मेरा लॉस, मैक्सिमम लॉस इज 21,600, एंड ये अच्छा शेयर बनकर ऊपर भागा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा इस महीना अंत तक 20, कितना यार, 35,300। बहुत अच्छा रिवार्ड है, 35,300 है। ठीक है, तो 21,000 का लॉस है, 35,000 का प्रॉफिट है। नाउ मान लीजिए जो बेल का जो रिजल्ट है, इट इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, और उतना अच्छा नहीं लगा, और शेयर भी ऐसे ही घूमते रहा, शेयर ऊपर गया नहीं, इट डिड नॉट गो 270-80, ऐसा हुआ नहीं, नीचे आ गया, इवन नीचे भी आ गया। देन व्हाट आई विल डू? कैन एनीबody आंसर मी व्हाट आई विल डू? Either you I try will to shift sell. another call or bring my call sell leg bring back. नीचे लेके बढ़िया, आओ. Short एक the चीज call. है, क्योंकि 2-3 दिन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लॉस में। हार्डली 2-3 हजार रुपया का लॉस दिखाता होगा, 2-4 हजार रुपया का, अगर इट इज नॉट गोइंग टू। बट व्हाट आई विल डू, आई विल से, आई विल सेल अनदर 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 One lot. कॉल। नाउ द 21, हाँ, 21,000 का जो लॉस था, मैं जब 275 का कॉल सेल किया, तो उसमें देखिए मेरे को कितना आ गया। मेरा लॉस जो 21,000 हो रहा था, वो 4,900 हो गया। द लॉस विच वाज 21,000 अर्लियर, नाउ इट बिकम 4,000। आई टुक दिस रिस्क बिकॉज शेयर प्राइस, the company did not, in the two conditions, company did not come out with a extraordinary result which I am expecting, much better than previous year, or even if the result was good, share price hardly moving up. But here, if that is good and share price is not moving up, then I will keep a very close watch on this. That's one of the call. One of the call must be showing good profit. One of the call which I have recently taken, I will keep a close watch. If the share price after 1-2 days again started going up, I will close my call that time. Do you understand? Yeah, You yes, got sir, me? understand. But now when we will initiate the second lot sale, सर, at मैं what आपको time बताया or ना, at 21 तारीख को सवेरे पता चल जाएगा ना। okay, 21st okay, morning you will be knowing. 21st okay, sir. morning what is happening in Bell you will be knowing. Okay. And result is known on 20th, previous day. So you have to do certain calculation. भाई मुझे कल करना क्या है, Yeah, ठीक है? okay, okay, sir. क्योंकि Okay, sir. 275 के ऊपर में कोई कॉल अवेलेबल नहीं है। दैट इज द मैक्सिमम अवेलेबल कॉल, 275। सो आई डोंट हैव चॉइस। एक्चुअली आई वुड हैव लव्ड टू डू 280 और 290, बट मेरे पास मौका नहीं है। सो अनलेस शेयर प्राइस रियली गोज डाउन, आई विल नॉट सेल ए कॉल। ऐसे ही मैं सवेरे उठकर मैं कॉल धड़ाधड़
नहीं कर दूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, आधा घंटा वेट करूंगा, फिर आई विल सेल ए कॉल, नॉट दैट सवेरे 9:15 को मैंने कॉल सेल कर दिया। गॉट इट? सो नाउ इसको छोड़ दीजिए, Yes, sir. इसको निकाल देते हैं। गॉड विलिंग वी शुड गेट 35,000, व्हाई नॉट? ओके, अच्छा, मैंने विश्वास भरोसा होना चाहिए ना, तो वो तो ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई डू, गैप एंड डाउन मोस्ट ऑफ द 5% शेयर आई एम खुलेगा तो डूइंग। क्या करेंगे? पार्डन? गैप डाउन 5% खुलेगा तो कैसे मैनेज करेंगे? आप कितने दिनों से ट्रेडिंग करो? कोई भी बेल में, हाउ कैन यू बिलीव देयर विल बी 5% गैप डाउन? नहीं, बेल का सपोज 5% गैप खुलेगा। डाउन कैसा हो सकता है? होगा नहीं। अगर होगा तो योर लॉस विल नॉट बी मोर देन 4-5,000। चेक करके देख लेना अगर होगा भी तो, ठीक है? उतना लॉस हो ओके। जाएगा। अगर आप बोल रहे हो ऐसा नहीं होता है भैया, जो 5%, ये जो अगर वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत लोग पूछते रहते हैं, बट इतने साल में ट्रेडिंग करने का बाद जानता हूं ना, जो बहुत लोग पूछते हैं ना कुछ लोग, सो यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी कॉल। तो आपको पूरा भूल जाना चाहिए, डेरिवेटिव इज वेरी डेंजरस। अगर वो डर है तो डेरिवेटिव में ट्रेड मत करो, आप इक्विटी में ले लो शेयर। लाइक ओके सर। सपोज आपको डर लग रहा है कि बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, देन आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए, खाली इक्विटी में आप ट्रेड कीजिए। जैसा कि 20 को रिजल्ट आने वाला है, आज था 18 तारीख, 17 तारीख, आप इंस्टेड ऑफ 2000, सर इसका लॉट है कितना, 2675 ऐसा कुछ है, तो आप 200-400 शेयर खरीद लो, बैठे रहो। रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है, नीचे आया तो बहुत अच्छा शेयर, उसको एवरेज करो। डू यू नो व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस बेल फॉर द नेक्स्ट ईयर? आप जो पूछ रहे थे, मैं उनको पूछ रहा हूं जो मेरे को अभी सवाल पूछे, 5% गैप डाउन हो तो क्या करना है? आपको पता है कितना उसका टारगेट है बेल का? नहीं नहीं सर। या इट इज अराउंड 320 टू 350। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नीचे जाए, मैं रेदर आई विल बी एडिंग माई शेयर। और अभी मेरे पास कितने शेयर है? मेरे पास 3,200 शेयर है। मैं 2 लॉट है, पहले तो एक लॉट रहता था ना 5,700, तो मेरे पास 3,200 है। और जैसे कि आज टीवी में एनालिसिस हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आई एडेड 500 शेयर। बाकी जो जितना मेरा शेयर है ना, वो मैं तभी खरीदूंगा जब शेयर प्राइस 270 को क्रॉस करेगा। मेरा जीटीटी ऑर्डर 270 में है, लेकिन इसमें एक दिक्कत मेरे लिए हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। आप जो बोला ना 5% गैप डाउन, मैं फंस नहीं जाऊंगा सर, अगर मेरा 5%। अरे सुनिए, अगर ओके पांच सर। परसेंट गैप अप होगा ना, तब मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो जीटीटी है ना 270 में है। आप समझ गए, ओके सर। मेरा 270। सपोज मार्केट ओके ओपन है 280, अभी ओके सर। 260 है, 258, अभी 280 में होगा, तो मेरा को तो 10 रुपया का घाटा लगेगा ना, उतना बाकी शेयर में। यस सर। ठीक है ना? तो ये यस। थोड़ा सा जो रिस्क है ना, ऑल ट्रेडर्स दे टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, हम लेते हैं। लेकिन बिकॉज मैं 3,700 शेयर कर लिया हूं, और आप देखिए मेरा जो 3,200 शेयर है ना, उसमें मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा व्हाट इज माय, एक चीज दिखा लेता हूं। दिस इज जीरोधा। खुल जा बाबा अभी। लेट अस सी जीरोधा कंसोल, 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 पोर्टफोलियो होल्डिंग, पोर्टफोलियो होल्डिंग, होल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, in bail already I am sitting with a 90,420 rupees profit। यस सेल सर। में मेरा अभी 90,000 प्रॉफिट है। थोड़ा सा लॉस होगा तो होगा भैया, फिर भी हम माने गंगा पार हो जाएंगे सोच रहे हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं सर, ऊपर जाएगा मेरा तो ये क्वेश्चन क्या था 90,000 भी क्या? ऊपर जाएगा, ठीक है ना? सो आपको ना सही वक्त पे, एचएल में देखिए 1,70,000, 1,17,000 नेट प्रॉफिट में बैठा हूं, उसको बुक नहीं किया हूं। लेकिन मेरा पास जो बीएचईएल है, ये जो सब है ना, ये सब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। सो आई एम थिंकिंग मेरे को करना क्या है, एंड फॉर दैट रीजन मैं टाइम टू टाइम प्रीमेच्योरली आई क्लोज माई ट्रेड्स, सो दैट मेरे पास पैसा रहे। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू सेंसिबल। सो दिस इज हाउ आई वुड डू माई ट्रेड्स नाउ डेज। आई शोड यू व्हाट आई एम डूइंग, एंड उसके बाद, और कभी कभी क्या होता है ना, जो सेकंड कॉल सेल, मान लीजिए दिस इज, यू सी दिस पिक्चर बेल में,
जैसे कि अपने भाई साहब पूछ रहे थे कि गैप डाउन होगा या नीचे जाएगा शेयर तो क्या करना है. सो नहीं सर, नहीं व्हेन नहीं सर, मेरा क्वेश्चन क्या था, अरे सुन अरे लीजिए सर, मैं एग्जांपल दे रहा. डोंट एक मिनट। बॉदर. अरे डोंट बॉदर. आई एम गिविंग एग्जांपल्स ओनली. यू डोंट थिंक पर्सनली आई एम नॉट नथिंग अबाउट यू. सो नहीं सर, ये नहीं जो सर, शेयर मेरा है ना, अगर क्वेश्चन बाई. पूरा कीजिए, मेरा क्वेश्चन पूरा सुन अरे लीजिए एक सर। मिनट रुको, मेरे सपोज, को थोड़ा रिप्लाई दो. ओके नाउ व्हेन आई विल बी ओके इन सर। दिस चार्ट, यू आर सीइंग दिस चार्ट. मैं कॉल कब सेल करूंगा? व्हेन आई एम कन्विंस्ड, when I'm convinced that share price is not going up, it will rather go down. And the moment it crosses, normal case में आप ध्यान रखें, when this leg, this is 250, ये 250 का नीचे अगर चला गया शेयर, then I will sell a call. This is where I will ओके sell a call to reduce my loss. Now question answer session is ready. Now मेरा जो शेयरिंग है उसको मैं बंद कर रहा हूं. Let us go to question answer because that is more important for each one of you. ये ट्रेड दिखाने से पहले आप बोल रहे थे कि जीरो द सेंसिबल में वो वाला जो आईवी वाला होता है ना, जिसमें 40 का आईवी होता है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस का, हाँ, वो एक बार शो Yeah. कर देंगे सर? Okay. I'll do that. Don't worry. I'll do that. अच्छा, ये जो है ना, अब देखिए एनालाइज है, देख रहे हैं ऊपर में, ट्रेड एनालाइज वॉच लिस्ट पोजीशन एंड ऑर्डर. आप देख रहे हैं उसका ऊपर में, इसमें एनालाइज में जाइए. ये एनालाइज में जाइए, उसका नीचे में बीच में देखिए स्क्रीनर है, स्क्रीनर. ठीक है, यहां क्लिक कीजिए. ठीक है, नाउ इट इज एटीएम आईवी. ये उल्टा पुल्टा है, आप उसको ऐसा कर दीजिए. हाईएस्ट इज 73, हिंद कपर 73. आप देखिए 40 तक जो है ना, आप 40 तक ये, इसमें कौन कौन सा शेयर है? पीएनबी है, एमसीएस है, क्रॉम्पटन है, आइडिया है. मुझे क्रॉम्पटन का भरोसा नहीं, इसलिए मैं क्रॉम्पटन करता नहीं. आईआरसीटीसी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. नेशनल एल्यूमिनियम के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. एबी कैपिटल के लिए भी नहीं है. आईएक्स में पड़ा हूं, मेरे पास 4000 शेयर है, 239 का. अभी 158 है आज का. तो मैं बस बैठा हूं, उसको रखे रहा. जय श्री राम, भगवान का नाम लेकर कब ऊपर आएगा देखेंगे. सेल के लिए इतना तो पैसा नहीं है. दीज आर ऑल शेयर वेयर यू कैन डू. ये सब देखिए किसमें 58 है, 56 है, 51 है. हिंद कपर में हाईएस्ट इज 73. यू गॉट योर आंसर अभी? यस सर. ओके फाइन. सो आई एम अगेन गोइंग बैक टू. हाँ सर मैं पूछ लूं आपसे? हाँ, क्यों नहीं. सर जैसे आपकी कैपिटल आपने बताया तकरीबन 80 लाख टू 1 CR है. हाँ, नहीं ज्यादा है, तो सर ज्यादा है. मैं कैसे है मैं बता देता हूँ. I'll tell you how. मेरा कैपिटल 80 lakhs. You know this year I increased on 1st of April to 80 lakhs. That video it was covered in my annual review video. Just last video उसमें बताया हूँ what is my new capital. It is 80 lakhs. Now I have 80 lakhs मतलब मेरे पास शेयर कम से कम 90 लाख का ऐसा है मेरे पास शेयर. मेरे को पूरा प्लेज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आई डोंट डू इंट्राडे. सो मेरे को बहुत ज्यादा क्या जरूरत है बेकार का 30 रुपीज देना है पर प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग. अनप्लेजिंग के लिए नहीं है, प्लेजिंग के लिए 30 रुपीज. तो मैं उसमें 30-40 लाख का शेयर प्लेज कर दिया हूं. तो वहां से आ गया मुझे 80%. सो 30 लैक्स, 24 लाख केम देयर. तो मेरा जो 80 लैक्स है वो इट बिकेम 1.04 करोड़. ठीक है. फिर एवरी मंथ आई एम ऑल्सो मेकिंग, मेरा प्रॉफिट हो रहा है. जब तक मैं पैसा नहीं निकाल रहा हूं और प्रॉफिट भी प्लाउड इन हो रहा है. पिछले महीना 5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ. इस महीना ऑलरेडी 2 लाख का ऊपर हो गया. तो ये 7 लाख भी ऐड हो गया. तो एक्चुअली मेरे कितने रुपया में मैं खेल रहा हूं? 1.1 करोड़. ठीक है, अब समझ में आ गया. दिस इज द कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल इज 80 लाख, बट these are my pledged money for which I am not paying money, and my profit is also getting plowed in, and that surplus profit मेरे को क्या करना है? मैं ट्रेड में लगाया हूं. जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर 1 मिनट मैं पहले पूछ लूं सर, 2 मिनट रुक जाइए. सर जैसे आपकी 80 लाख या 1 करोड़ जो भी कैपिटल है, तो जब आप एक्सेल शीट अपनी भेजते हैं मंथ एंड में, तो उसमें आपने तकरीबन 40-50 ट्रेड्स लिए होते हैं. हाँ, यू आर राइट. तो तब 1 करोड़ रुपए में तो अगर हम प्लॉट के हिसाब से आई थिंक यू मस्ट हैव, या मैं समझ गया. आई ऑलवेज ओवर ट्रेड. मेरे पास 1 करोड़ है ना, मैं 1.5 करोड़ का ट्रेड करता हूं. मैं 1.5 करोड़ का ट्रेड करता हूं.
तो आपके एसएल के साथ करते हैं, क्योंकि सर ऐसा उतना तो फिर रहेगा नहीं शेयर्स खरीदने के लिए हमारे पास। अरे अगर हमारा भाई ट्रेड खराब हो गया भाई तो। मैं इसीलिए कुछ शेयर में मैं लॉस बुक करके भी निकल जाता हूँ ना, जब जिस दिन कुछ उल्टा पड़ा मेरे को। मान लीजिए मैं पुट सेल किया हूँ, मार्केट गिरेगा तो मैं उसमें लॉस बुक करके निकल जाऊंगा। मैं ज्यादा कॉल सेल किया हूँ, मार्केट ऊपर उठेगा तो फिर कॉल को लॉस में बुक करके निकल जाता हूँ। आई ऑलवेज ओवर ट्रेड। समझ गया ना, आई ऑलवेज ओवर ट्रेड। उसके लिए हिम्मत होना चाहिए, उसके लिए हिम्मत होना चाहिए करने के लिए, ठीक है। लॉस लेने का। हाँ लॉस, अरे लॉस लेने का हो ना, सब कोई चाहते कि मेरे को 5,000 6,000 बनाओ। हाँ, मैं ये नहीं देखता हूं कि मेरा पीएफसी में 40,000 प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, और लेकिन 3,000 4,000 के लिए मैं सोचूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन ये था सर। अरे सर मेरे को पूछने तो दो पहले सर। पीएमजी 2 मिनट रुक जाइए। ओके आई गिव टाइम, मैं आधा घंटा बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। हाँ सर, हमने जैसे पूरा एक लॉट हमने स्टैगर्ड बैंक में खरीद लिया, हमारी कॉल सेल भी इन दी मनी हो गई, तो सर लास्ट वीक में क्या हमें पूरा मार्जिन चाहिए होगा दोबारा से? जिद होता है क्या हमारे से डिमांड करेगा, क्योंकि कॉल सेल इन दी मनी है, तो हमें फिर और वो मार्जिन मांगेगा, या शेयर्स पड़े तो मार्जिन नहीं मांगेगा? कुछ आइडिया है सर उसके लिए? सर देखिए, मैं तो जिंदगी में कभी भी पूरा महीना कभी कोई शेयर में नहीं रहा। मेरा जब मेरा एवरेज टाइम होता 7-8 दिन 10 दिन, मेरे को 40-50% मिल गया, कहाँ 30%। मेरे को डाउट हुआ इस शेयर के ऊपर, मैं 5% प्रॉफिट लेकर भी निकल जाता हूँ कभी कभी। सो आई विल नॉट वेट टिल द लास्ट डेट। अगर आप देखिए, मैं मेरा पीएफसी का कौन सा महीना का था ट्रेड, मेरा जून का है, लेकिन मैं देखिए 3 दिन पहले निकल गया। मेरे को 7 दिन में 40,000 रुपया मिल गया, मैं क्यों जून तक इंतजार करूं 1 लाख प्रॉफिट के लिए? सो दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई डू। व्हाई यू शुड वेट? आप अपना, और जितना जल्दी आप निकल रहे हो ना, आप प्रॉफिट कमा रहे हो और कैपिटल रिलीज कर रहे हो। हमेशा कैपिटल के ऊपर नजर रखो, कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है। हाँ, घर में कोई है, आप सोचते हो कि चलो और 10 दिन रहने से मेरा प्रॉफिट अभी जो है ना, जो डेरिवेटिव का लॉस ज्यादा है वो डीके हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको कोई, आपका वाइफ या आपका भाई या बंधु थोड़ा 10-15 दिन के लिए 2-4 लाख 5 लाख रुपया देते हैं तो वेट करो, अच्छा पैसा मिल जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ अरे दिस इज व्हाट आई डिड लास्ट मंथ। मैं अगर 1 तारीख अप्रैल को कोई शेयर था, मैं उसका फोटो भी रखा था, स्क्रीनशॉट। मैं वीडियो बनाया नहीं, मेरे को आजकल वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, अकेले कितना करूं मैं। तो उसका क्या हुआ ना, मैं देखा मेरा प्रॉफिट आ रहा है 8,000 रुपया, लेकिन मैं किसी से पैसा ले लिया और 5 दिन रखा उसको। 5 दिन का लिए बाद वो प्रॉफिट 40,000 हो गया, बस उसका पैसा वापस कर दिया, मैं 40,000 लिया 8,000 के जगह पर। तो ये भी कर सकते हो आप, लेकिन आई एम नॉट, मैं ऑफिशियली मैं किसी को ये बोलता नहीं कि आप लोन लेकर शेयर ट्रेडिंग करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कभी कभार ना पेइंग 1,500 रुपया 2,000 रुपया अगर इंटरेस्ट देकर मेरे को 40,000 का फायदा हो रहा है, तो वो थोड़ा मैथमेटिकल थोड़ा कैलकुलेट, उसमें वो फायदा कभी कभी सोचना चाहिए। ये मैं पर्सनली, आई डोंट नो वेदर आई एम रॉन्ग और राइट, मैं किसी को तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा किया हूं, सो आई एम कन्फेसिंग इट। तो अब सर ये जैसे इलेक्शन मंथ है नेक्स्ट मंथ, तो स्ट्रेटजी आप अपनी सेम रखते हो या कोई चेंज? सेम बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसा कि मैं कैलकुलेट कर लिया था, इस महीना अगर मार्केट 0 हो जाएगा तो मेरा लॉस विल बी 1,19,555 रुपीज। वैसे पूरा कैलकुलेटेड जून महीना के लिए मेरा जितना भी ट्रेड है, देयर इज नॉट ए सिंगल शेयर जहां मेरा अनलिमिटेड लॉस होगा। रादर मोस्ट ऑफ द केसेस ना मेरा खाली कॉल सेल है, उसमें पुट मैं किया भी नहीं, बीसीएस भी किया नहीं, बीपीएस भी किया नहीं। आई हैव नॉट डन बीसीएस, नॉट डन बीपीएस, नॉट डन सीएसपी, नथिंग, नो पुट। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर 5 को जो करने का करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर, बिल्कुल ठीक है। और सर ये ऑर्डर बुक को टारगेट्स का ये जी बिजनेस में ही चेक करते हो कि ऑर्डर बुक कितना है कंपनी का और ये टारगेट्स? नहीं, वो टीवी में आता है ना, हर जगह पर आता है। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता हूँ ना, यू रीड न्यूज़पेपर। देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में ना जो मोबाइल वर्जन है ना, उसमें बहुत बढ़िया देता है, एवरी डे दे गिव सम शेयर, उनका टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, वो सब मैं लेता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। मोस्ट ऑफ द आइडिया आई गेट फ्रॉम देम। और जी बिजनेस मेरा फेवरेट है,
भाई कम से कम मेरे को भरोसा है जी बिजनेस में जो लोग है एंकर एंड ये, मैं उनका तो वो लोग 50 शेयर बोलते हैं, बट कम से कम मेरा दिमाग से मैं पता लगा लेता हूँ मेरे को कौन 2-3 में करना चाहिए. they will speak so many things. जी थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन थे. ठीक है जी, दूसरा अभी दूसरों को देते हैं मौका. चलिए. हाँ जी सर, थैंक यू. मेरा नाम पराग है. हाँ पराग. निफ्टी 20 जो ETF बहुत लिक्विड है, बरोबर. निफ्टी 20. हाँ तो मेरा क्वेश्चन है, आप निफ्टी ऑप्शंस में कुछ नहीं करते हो, राइट? मैं बिल्कुल नहीं करता IB हूँ, कम होती है. बिल्कुल नहीं करता अच्छा हूँ. सर, आप भी नहीं करते. आई भी करता हूँ, आई भी काम है, मैं नहीं करूंगा. अच्छा ओके ओके, थैंक यू सर, समझ गए. ये आपका और आपका जो स्प्रेड का जो है ना, परसेंट का जो है ना, आप डेल्टा न्यूट्रल, ये डेल्टा न्यूट्रल है ना. वो डेल्टा क्या होता है? वो डेल्टा डेल्टा क्या होता है? सर, वो जब आप स्टॉक लेते हो ना 50, यही मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ मालूम नहीं. डेल्टा बीटा थीटा कुछ मालूम नहीं है. हम आंख बंद करके देखते हैं प्राइस क्या है, उसका नीचे उसका ऊपर, मुझे कोई मतलब नहीं डेल्टा क्या है वो क्या है. मैं सिर्फ देखता हूँ फंडामेंटली अच्छा बढ़िया शेयर है कि नहीं, और मार्केट में वो ऊपर जाएगा कि नहीं. और तीसरा पॉइंट है, ये वाला शेयर हर जगह पर लोग बोलते कि नहीं. एक जमाना था लोग IRCTC के बारे में बोलते रहते थे, IRCTC IEX. आज कोई IEX के बारे में, IRCTC के बारे में ज्यादा बोलता है? नहीं बोलता है. और जिस दिन वो चर्चा में आएगा ना, फिर शेयर ऊपर उठेगा. जो चर्चा से निकल गया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो ध्यान रखिए ये 3 चीज, प्रॉस्पेक्ट्स और विजिबिलिटी, और तीसरा रहा आपका थोड़ा क्या है ना, जो एक्सपीरियंस जो है ना, वो तीनों को लेकर शेयर सिलेक्ट कीजिए. और जो अपना जो पुराने ख्यालात है, HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, ये सब शेयर बहुत बढ़िया है, बट भाई मैं उनसे नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए ज्यादा. हेलो. हाँ सर. हेलो. हाँ हाँ सर, सनत भट्टाचार्य बोल रहा हूँ. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. अच्छा सर, मैं one question I have to you. Sir, Yeah. you always advise people to share. If people want to buy share, you advise them to buy in cash market, not in derivative, means future. Why don't you advise them to buy in one lot of future, because it will save lot of money? No, who told you? Actually, it is wrong. It will be a lot of losses will be there. If there will be a loss, the loss will be bigger. Profit will be bigger. At the time, the loss will also be bigger. And I have, for your information, in certain future, I have lost something like 1.5 lakhs to 2 lakhs in a one single month. One of them is our favorite Dixon, when it fell from 5,000 to 3,800. I lost 2 lakhs rupees in Dixon itself, future में. गलतियां कर करके मैं सीखा हूँ. Future and also buy a put. Then सर ये सब करिए मत ना. आप फ्यूचर क्यों करोगे? आप सिंथेटिक फ्यूचर कीजिए ना. एक कॉल्स बाय कीजिए और एक पुट सेल कर दीजिए, खत्म. दैट इज सिंथेटिक फ्यूचर. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग. Sir, I have a question. But you also encourage to do synthetic futures. Sir. व्हाई नॉट? यू कैन डू. दैट इज मच. अच्छा बड़ा चीज क्या है, आप जब फ्यूचर करते हो ना, 8 लाख का रुपया के ऊपर में आपको STT देना पड़ता है. लेकिन आप पुट करते हो ना, 35 रुपया 40 रुपया STT कम लगता है ना. वो सीतारमण को पूछा ना अभी टीवी में, सर आप लोग बैठे बैठे इतना करोड़ रुपया STT में पैसा छीन लेते हो. जब 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 चिदम्बरम ने STT लाया था, क्यों लाया था? बिकॉज उस समय कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज 0. वो उसको 0 कर दिया, बोला उसको 0 कर देंगे, कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा. कितना बढ़िया था उस समय. और वो थोड़ा सा STT लगा दिया. लेकिन आज STT को भी बढ़ा दिया और कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया. Yes, sir. So But that is sir, it. I must say one thing, sir. Here, this session, your interactive session is really wonderful, sir, and it is helping a lot Thank you. trader like us, sir. Thank you, thank you. Next question. newcomer and Thank who you. Doesn't have a marriage. ठीक है. अरे कोई बात नहीं, आप लोग मुझे DM भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम. मेरे को बहुत लोग कॉल करते हैं. But sir, at the end of the show, if you share your mobile number, and I will request you. अरे भैया मैं मोबाइल नंबर थोड़ा मैंने पब्लिक नहीं देना अभी. लिख रहा कलम है तो आप लिख लो भैया. मैं इसमें नहीं यार, ये तो फिर ये वीडियो जाएगा. चलो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर दो, मैं दे दूंगा नंबर, कोई बात नहीं.
Okay, sir. Thank you. Okay, next And, question. Sir, I have a question on Bell, sir. अरे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन. हाँ, Bell के ऊपर question है sir. या I have taken a position 3 days back at 245. Now you said that the share price, you see, it has already gone 260. और मेरा call था 260 पे, तो now it has gone in the money. It will go in the money on 21st, as you said. So now after it goes in the money on 21st, can I initiate bull call spread? यू कैन ऑलवेज. देखिए, कोई अच्छा शेयर है ना, यू कैन देन ऑल्सो यू कैन डू इट. बट यू सेड दैट ये 240 पे यू ऑलरेडी टेकन ए पोजीशन. व्हाट पोजीशन यू हैव टेकन? From 245, now I have the whole lot with me, and now it will go in the money on 21st. So now I want to still keep my shares, but also can I take another like a bull call No, spread? if you have got, cover my loss on the call? yeah, if you have got it to about 10-12 lakhs rupees, you can do that. If you have got 10-12 Okay, lakhs sir. rupees extra, because bail का ना, you are doing a fantastic. 245 में रखे ना, next year I am feeling it should go up to 350. तो आप तो मैंने बम्पर मैंने you should send me a क्या बोलते हैं, मैंने प्यार भरा एक संदेश भेज देना मेरे लिए. You can do नहीं that. सर, मैं आपको फुल भेजूंगा सर, प्रॉफिट के साथ में पूरा डिटेल भेजूंगा, और एक आई गिफ्ट यू ठीक है. also. हाँ, बहुत अच्छा. दूसरा चीज क्या है, आपने जो बोला ना, आप क्या करना है, मान लीजिए ऑन 21st को मार्केट ओपन एट 270, मान लीजिए, ठीक है ना, से 270. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय 260 कॉल. ओके, you can buy 260 call and sell 280 call. ठीक है, if market price is 270, if it is 275 you can also do that, but if it is 280, then in that case you buy 270 call and you sell 290 call. समझ में आ गया? You got it? आ गया सर, आ गया सर. Okay. कॉल लेके उसको कवर भी करते हैं, बस सेल कर. and the moment you buy and sell this call, what happens? Price comes down. What you will do? You sell another call after some time, after one day. Yes. As simple Yes. as this, sir. Right. As simple. Don't make your trades complicated. करेक्ट. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर हम जब बीपीएस और बिजनेस कर रहे हैं सर, क्या नाम है? तो मेरा नाम पिनाकी है. हाँ, त्रिनाथ. या प्लीज गो अहेड. सर मैं बोल रहा हूँ कि हम जब बीपीएस और बीसीएस कर रहे हैं, तो जब इन द मनी में चल जाता है, बहुत इन द मनी हो जाता है, तभी तक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, जितना एक्चुअली में जितना प्रॉफिट लॉस होने में जो हमको स्ट्रैटेजी में दिखाई देता है, वो उतना नहीं होता है. हाँ, वो क्या करें हम सर? छोड़ दीजिए उसको, जीरोदा उसको नेट कर लेगा उसको. उसमें चार्जेस नहीं लगता है. और लगेगा, जो लगेगा 25-30 रुपया लगेगा, जो लगेगा, लेकिन आप करने से ज्यादा लॉस होगा. आप कोशिश कीजिए. देखिए अभी क्या क्यों होता है मैं आपको बताता हूं. मेरे पास भी ऐसा एक तो पड़ा हुआ पीएम, मेरे पास हिंद कॉपर जो है ना, मेरे पास 370 का कॉल है और 380 का कॉल है. अभी तक 370 380 का अंदर चल रहा था, आज 389 बना हिंद कपूर. बट 370 और 380 का जो कॉल है ना, बिल्कुल लिक्विड नहीं है. क्यों? द शेयर इज बैन में चल रहा है. द मोमेंट ये बैन से हट जाएगा ना, इमीडिएटली इट विल बिकम लिक्विड. आप थोड़ा उसका नजर रखो. Which are the share which are in ban? बैन को नजर रखना फॉर एवरी डेरिवेटिव ट्रेडर. इट इज ए ड्यूटी. हमेशा 315 to 330 के बीच में जी बिजनेस बोलता है कौन सा बैन में जाएगा, कौन सा बैन से निकलेगा. सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो यू कैन टेक योर कॉल्स, यू कैन टेक योर ट्रेड्स. सो ऑलवेज कीप एन आई व्हाट इज हैपनिंग इन द, कौन सा शेयर अंदर घुसने वाला है, कौन सा निकलने वाला है. जो निकलने वाला है द शेयर प्राइस विल गोज अप, जो अंदर जाने वाला है उसका शेयर प्राइस विल गो डाउन. आप देख लीजिए, इनवेरिएबली ऐसा ही होता है. इनवेरिएबली इट हैपेंस लाइक दिस. ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि बिल्कुल आपसे वेडनेसडे तक भी नहीं हो रहा है, थर्सडे को भी नहीं हो रहा है, थर्सडे मतलब एक्सपायरी का, वेडनेसडे मतलब एक्सपायरी का, तब भी नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है, छोड़ दीजिए, ब्रोकर कर लेगा. जो क्लोज प्राइस होगा ना ब्रोकर करेगा. थोड़ा सा जो लगेगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा, आप करने से ज्यादा लॉस कर लोगे. जैसे जो बुल पुट स्प्रेड है ना, उसमें तो जो कॉल हम पुट सेल किया है उसको डिलीवरी तो देना पड़ेगा ना. क्यों भैया? अरे आप बोलते हो ना बुल पुट स्प्रेड में, बुल एक तो सेल भी क्यों है, एक तो बाय भी क्यों हो ना. तो बहुत छोड़ देंगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा. हाँ, बहुत छोड़ना पड़ेगा ना. क्या बात करते हो, दोनों छोड़ना पड़ेगा भैया.
ओके ओके सर। समझ सर, गए? और एक क्वेश्चन है सर, सर और एक सर क्वेश्चन है सर, मैंने जब से हाल में जब तक कॉबोट कॉल में शुरू किया हूँ 6 मंथ शुरू किया हूँ, मैंने कैलकुलेशन कर रहा था, कोई आज तक मैंने जितना प्रॉफिट किया हूँ उसमें मैं कंपेयर करूंगा तो इक्विटी उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। बहुत बढ़िया, गुड लक, बहुत अच्छा। अरे मैं कर रहा हूँ, मैं जब 1900 था। इक्विटी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन कवर कॉल में मेरा अरे ठीक है, प्रॉफिट हुआ अरे ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आप क्यों कर रहे हो ये ट्रेड? बिकॉज यू डोंट हैव फुल लॉट का पैसा नहीं है, इसीलिए कर रहे हो ना। आपका बस जैसा कि अभी बोला ना साहब जी, वो बेल का एक लॉट खरीद लिया 245 में, तो ही हैज गॉट कैपिटल, ही कैन डू दैट। मेरे पास उतना कैपिटल है नहीं, मैं एक लॉट नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमा रहा हूँ। मेरे छोटा सा कैपिटल में मेरे को उतना मिला, वो बहुत काफी है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पराग, आपके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। पराग, हाँ ओके सर। सर, तो मुझे इतना पता चल रहा है आपके एक्सपीरियंस से, और मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं रॉन्ग हूँ, आपको नीचे का जो लॉस है, मार्केट जीरो भी हो जाए, आपको उसकी ज्यादा चिंता है। ऊपर स्टॉक भागेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, आप नीचे का कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? बिल्कुल। मैं 2 दिन पहले इसका ट्वीट भी डाला था, 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले। आप हमेशा जब भी ट्रेड लेते हो ना, आप पहले सोच लो कितना लॉस करने वाले हो मैक्सिमम। अगर वो आप सोच लिया ना, फिर क्या डर, फिर काहे का डर। करेक्ट सर। और नेचर के हिसाब से मेरे साथ भी ये होता है कि फ्यूचर ले लिया और अगर पुट नहीं लिया तो बहुत प्रॉब्लम होता है नेचर के हिसाब से। तो पुट लेता हूँ तो पीस ऑफ माइंड होता है और रिटर्न भी आता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। अब गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ, कोई भी एक पूछो, मैं दूसरा। अच्छा सर, मेरा बहुत एक सिंपल सा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास 40 लाख का कैपिटल है और मैं 4 से 5 स्टॉक्स में करता हूँ ट्रेड, बट मेरे को पता है डर कहाँ लगता है। मैं स्टैगर्ड बाइंग करता हूँ, बट मेरे को इस चीज़ का डर लगता है कि मैं पूरा लॉट ले लूँ और उसके बाद अगर मार्केट गिर जाए तो मेरे पास बहुत बड़ा इक्विटी की वैल्यू होगी जो नेगेटिव में चली जाएगी। उससे आप कैसे मतलब करते हो सर? जैसे आपने सपोज करो आपने 50% खरीद लिया स्टॉक, लॉट खरीदा है। अरे मैं कभी कभी 10% खरीद के शुरू करता हूँ। समटाइम आई डू क्या CSS जो CSS करता हूँ ना, कभी कभी 10% शेयर से भी शुरू करता हूँ। फॉरगेट 20-30%। अगर मेरे को लगता है कि ये शेयर नीचे जा सकता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, आई मे बी रॉन्ग। देखो एवरीथिंग, मैंने आई एम नॉट, मैंने मेरे कोई भगवान में भविष्य वाला नहीं हो। इफ आई थिंक दैट इट मे गो डाउन तो मैं फिर 10-20% में रह जाता हूँ। और ऑलवेज चांस ना, ऊपर जाएगा तो ऑलवेज यू कैन बाय ना, सो नो प्रॉब्लम ना इफ इट इज गोइंग। और नीचे जा रहा है तो कोई चिंता नहीं, बैठे रहो, क्या करना है। एंड डोंट बाय 30-35, जो बोला ना ब्लॉक हो जाता पैसा, तो 30-35%, इवन 40% यू कैन कीप फॉर द ATM कॉल। उससे पहले मत लो भैया, नॉट डोंट बाय। या नेक्स्ट, या Sir, good evening. I am KK Mishra speaking, sir. Yeah, Mishra Sir, ji. I have two questions. One question you used to do that expiry day trading. You made two videos. Oh, long back I left. 2 years back I left. Yeah, I closed it. Yes, sir. That is unnecessary. any reason वो for दिमाग खराब है। 2-2 रुपया 3-3 रुपया का मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, और मैं ब्रोकर को पैसा देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मनी शुड बी माइन। And second question is, sir, last year, like my financial year and my equities, if I see my profit and losses, I am sitting on the profit of 10 lakh rupees. So how do? You book your unrealized gain at once in the financial year, or you continue that for the longer time as an investor? It continues. Whatever. आप सोच लीजिए, इट्स अ कंपनी इज देयर, उसके पास रॉ मटेरियल है, उसके पास फिनिश्ड गुड्स है। जब 31 मार्च आता है, क्या सब वो लोग जीरो कर देते हैं क्या? नहीं, इट विल बी कंटिन्यू, नेक्स्ट ईयर को चला जाएगा। उसमें क्या है, आप जो बुक करते हो दैट इज वेयर यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट व्हाट इज अनरियलाइज्ड। जीरोधा में 2 चीज है। आप जब लास्ट में उसका उस पेज में जाओगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वो दिखाता है कंबाइंड प्रॉफिट और रियलाइज्ड प्रॉफिट। ऑलवेज चूज रियलाइज्ड प्रॉफिट, तब आपको पता चलेगा कितना रियलाइज किए हो, प्रॉफिट या लॉस, वॉट एवर। Sir, I have a question. या सर, यस प्लीज। सर आपने हाँ सर, पूछिए। हाँ, मैं 45 करता हूँ OWS, और व्हेन आई वांट टू डू BPS, उसके लिए लिक्विडिटी नहीं रहता है। तो जैसे 45 डेज पहले, नाउ आई एम इन मे, मैंने जून का चालू किया, लेकिन लिक्विडिटी BPS के लिए नहीं है। तो कैन आई टेक बाय पुट इन मे सीरीज
नो, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, यू कांट। बट आप बताइए कौन सा शेयर है जिसमें आपको नहीं मिल रहा है, टेल मी, गिव मी एन नहीं, एग्जांपल। अभी सर अरे मैं तो जून का मैं 10 दिन हुआ सेल किया हूँ, आप तो अभी बोला टुडे कितना 18th, मैं तो 9th और 10th को मैं शुरू कर दिया हूँ जून का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आप मतलब 50 पहले भी कर देते हैं। हाँ, मैं हाँ। जस्ट देख रहा था ओएफएसएस में था। नहीं ओएफएसएस में नहीं मिलेगा, ओरेकल में नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए। हाँ, उधर वो देखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। यू गो, आपका जो सेंसिबल में देयर इज ऑप्शन चेन इज देयर, यू चेक। अभी मई चल रहा है, जून में किस में लिक्विडिटी है किस में नहीं है। डोंट गो टू इवन इफ इट इज शोइंग हाई एटीएम आईवी इज मोर, डोंट टच दैट शेयर। ओएफएसएस आई एम आल्सो वेटिंग, I still have my 8,500 put of May is still open. It is still open. I have not shifted. I have not shifted to June अभी तक. So it is quite natural. What you are asked me. No problem. Don't worry. ठीक है। So PPS भी अगर लेना है तो you should take for the same month. Always. वो चीज उसको भी मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। What you are asking me, I have already experimented. उसमें घाटा होता है। सर इसीलिए पूछ रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं नहीं मैं सब देखिए, आई डोंट मेक टू मेनी वीडियोस। जब तक मेरे को कुछ नया आइडिया नहीं आया है, आई डोंट मेक ए वीडियो। मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है। मैं अगर आपको कुछ बेनिफिट कर सकता हूं तो बनाता हूं, तो इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए। Correct, sir. Thank you, sir. Sir, one thing, sir, do you encourage covered call strategy, sir? खाली कवर्ड कॉल? Yes. हाँ, यू कैन डू इट। उसमें क्या है, कवर्ड कॉल इज ए नो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कर सकते हैं। But it is not. It is a better strategy than the strategy we are discussing now. नो, हाउ कैन इट बेटर? वो वहां आपको एक का आपको मिलता है प्रीमियम, मेरे जो मैं बता रहा हूँ उसमें 2 प्रीमियम दोनों साइड से मिलता है। सो यू गेट मोर मनी हियर एंड यू गेट योर मार्जिन इज ऑल्सो लो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक तो स्टेटमेंट दिया था ना, पोस्ट, मेरा 3 दिन में बेल में मेरा 50,000 इज द मार्जिन फॉर ए बुल कॉल स्प्रेड का 47,000 वाज द मार्जिन। तो 25,000 मेरा से 50,000, 25,000 जीरो था दिया, 25,000 मेरा, तो 25,000 में मैं 3 दिन में 8,000 रुपया नेट प्रॉफिट। Yes, sir. तो इट इज 30% रिटर्न इन 3 days, 30% रिटर्न इन 3 days. Yes. So don't do covered call. Your margin in covered call, your margin will be 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh. Whereas if you sell a put, hardly 30,000 more you will pay. And out of 1,40,000 or 1,30,000, 65,000 or 70,000 will be borne by Zerodha margin, and 70,000 goes from your pocket. So your return will be much more. Yeah. Yes, sir. And sir, one question. Sir, do you advise to initiate straddle and strangle in index? मैं इंडेक्स में कुछ भी नहीं करता आजकल, नथिंग, जीरो। लास्ट 2 years आई एम नॉट डूइंग एनी चीज। इंडेक्स में कुछ नहीं करता मैं। मेरे पास पैसे का ऐसे ही कमी रहता है यार, मेरे पास इतने सारे, आप देखा ना, उसमें सब जगह मेरा सब इन द मनी होने वाला है, और मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं कहाँ वहां पैसा लगाऊंगा पैसा, और वो भी कम रिटर्न के लिए। वही शुड आई गो देयर। वो ठीक है, स्ट्रेटेजी के हिसाब में वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पराग बोल रहा हूँ, ये इतने सब पोजीशन होते हैं आपका 50-60 पोजीशन, तो पूरा दिन मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। देखिए, मैं उसमें बीच बीच में घूमने भी चला जाता हूँ इधर उधर का, मेरा शॉपिंग के लिए, या थोड़ा कहीं मैंने कोई कहीं क्लब में भी थोड़ा मेरा अपना काम भी कर लेता हूँ बीच में। बिकॉज मैं अपना नीचे का जो है ना, उसको मैं प्रोटेक्ट रखा, उसको मैं प्रोटेक्ट, मेरा वो फिक्स्ड है, वो डिफाइंड हो गया है, तो इसीलिए आई कैन टेक। बट आई एम ए फुल टाइमर, मैं बैठा रहता हूँ। मैं जो खाली समय है ना, मैं कैलकुलेट करता रहूँ कौन सा शेयर, मान लीजिए टीवी पे एक बोलता है कि अरे खरीद लो वाला शेयर, तो मैं चेक करता हूँ भाई उसका लिक्विडिटी है कि नहीं, उसका क्या था, उसका फ्यूचर बेनिफिट है कि नहीं, वो सब चेक करने के बाद मैं शेयर लेता हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं लेता हूँ कोई। सर
ये रियल लाइफ में ऐसा ही है कि लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है तो LIC पॉलिसी लिया है तो रिस्क कवरेज डेथ बेनिफिट जैसा, हाँ, तो इक्विटी में वही है कि नीचे का तुम्हारा रिस्क कवर्ड है। always do that. That is why I am repeatedly writing and repeatedly saying, मेरा वीडियो में बोलता हूँ कि आप और CSP करना बंद कर दीजिए अभी का मार्केट में। CSP हम तब करेंगे बरोबर है, बरोबर। जब बढ़िया मार्केट आएगा ना, जैसा कि कोरोना का बाद आया था बढ़िया बुल मार्केट, जब खाली एक जगह बढ़ रहा था, तब हम लोग CSP करेंगे। हो सकता है कि इलेक्शन का बाद अगर रिजल्ट को देखकर हम लोग उस समय भी CSP करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। कभी भी कोई चीज का डर लग रहा है, डाउटफुल है, कोई रिस्क नहीं लेने का है। और हम लोग भगवान नहीं है, सब बोलता है कि मोदी जी जीतेगा, क्या मालूम अगर हार गया तो। अरे मनमोहन सिंह जब वो था ना, क्या था भाई अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी, कितना बढ़िया किया, साइनिंग इंडिया क्या किया। कोई सोचा था कांग्रेस जीत कर आएगा? कोई नहीं सोचा था। 2004 में आ गया ना। ये हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो टीवी, एक्स, व्हाट्सएप ये सब देखकर ना, यूट्यूब देखकर हम लोग बोलते हैं अरे ऐसा ही होगा। अरे कोई गारंटी नहीं यार। ये गांव का पब्लिक क्या सोच रहा है उसको कौन जाकर पूछता है उसको। वोट तो वो लोग का पास ज्यादा है, हमारे पास तो वही। तो क्या होगा तो वही, मेरे को क्यों करना है स्पेकुलेशन। हाँ मैं चाहता हूं कि जीते सो दैट मार्केट बढ़े, लेकिन क्या होगा वो मेरे को पता नहीं। जहां डाउट होता है मेरे को डिफाइंड लॉस चाहिए। करेक्ट सर। मैं अभी US में हूँ, यहाँ पे भी किसी ने सोचा नहीं था इंटरेस्ट रेट 2 का 6% हो जाएगा। हाँ, मेरा बेटा भी लंदन का है, इज ए ब्रिटिश सिटीजन माई सन। जब वो शुरू किया घर का पैसा ना 2.5 था, अभी 6.5 हो गया उसका इंटरेस्ट रेट। करेक्ट सर। एंड ही इज प्री पेइंग हिज लोन अमाउंट। करेक्ट सर। Sir, one thing, this is the problem. As my last audience asks you, you need to spend whole day in front of the screen or not. Actually, our motto is to earn million from the share market, but we want to do it as a second income. Second source of income. Is it possible? Is it ever possible? Can we run this with our job? हाँ सर, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट इन इफ यू आर इन द जॉब, लेकिन आप ना अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। अगर आपने BPS BCS कर लिया और GTT में अपना रख लिया, ऑर्डर दे दिया, तब आपको जॉब में क्या प्रॉब्लम है? ऊपर जाएगा तो शेयर बाय हो जाएगा, लेकिन एनफ पैसा आप रख कर करना है। और पैसा नहीं रख कर ये सब करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। जॉब में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन इट इज प्रीफरेबल दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। प्रीफरेबल। Sir, you tell me which one is the golden period in share market to you? 60 After plus. retirement or After retirement. before or नहीं, while you अरे यू देखो, मेरे वाला स्ट्रेटेजी में तो बहुत पैसा चाहिए, तो इट इज ऑलवेज आफ्टर रिटायरमेंट ओनली। That's been मैं बोल रहा हूँ सर, फुल डे अगर नहीं दूंगा तो सर कैसे हम लोग इससे पैसा सैलरी से या एज ए बिजनेस एक्चुअली से इफ वी डू नॉट टेक इट एज ए बिजनेस then how we expect that we will earn more? Yeah, that's right. आप क्या करते हो ना, आप चाहते हो कि सर आपके फील्ड में आप जो कर रहे हो, आपका रॉ मटेरियल पैसा है, बिना पैसा कुछ नहीं होता टोटल। हाँ, पैसे का बहुत जरूरत है। आप जितना ज्यादा पैसा होगा ना उतना बढ़िया आप कर सकते हो इसमें। इट इज ऑलवेज लाइक दैट। लेकिन उन्होंने जो पूछा ना मेरे को सवाल, जो नौकरी करते हुए कर सकते हैं क्या? नौकरी करते हुए मैं भी थोड़ा बहुत ट्रेड करता था, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट। अभी तो मैं बोलता हूँ मैं कंसिस्टेंट हूँ, बिकॉज मैं हर एक महीना तो आपको अपना दिखा रहा हूँ ना रिपोर्ट कार्ड। प्रॉफिट तो आ रहा है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, बट ठीक है। एंड माई टारगेट इज जस्ट 2% पर मंथ, तो इसीलिए चलता है। सर इसको कोई कैरियर के तरह ले सकते हैं क्या, टोटल कैरियर करने के लिए? नहीं, इतना जल्दी मत करो। बॉस के साथ पटरी नहीं खाता है तो दैट इज नॉट ए रीजन टू मेक इट ए करियर। हर एक कंपनी में ना बॉस लोग थोड़ा ऐसा होता है, तिगड़मबाज होते हैं, सबको बम्बू देते हैं। मेरे को भी मेरा बॉस कभी कभी सब बॉस नहीं, कुछ बॉस के साथ तो पटरी नहीं खाता है, लेकिन कुछ बहुत लोगों के साथ तो। हाँ, आप नौकरी कर रहे हो, कंपनी आपका नहीं है, आपका पेरेंटल ये कंपनी नहीं है, तो वहां तो कुछ तकलीफ होगा ना, होगा।
बट आप आराम से जो भी हो रहा है उसमें पैसा कमाओ। ऐसा नहीं कि बॉस के साथ मेरा झगड़ा हो गया, मैं रिजाइन करके मैं ट्रेजर बन जाऊंगा, तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया। बट इफ यू वांट टू एट ऑल, देन 3 चीज कर लेना। एक, सबसे पहले 2 करोड़ का आप अपना इंश्योरेंस करवा लेना। दूसरा, आपके वाइफ के नाम पर 12 महीना का पैसा रख लेना, वाइफ को दे देना, अपने पास नहीं रखा। तीसरा, 1 करोड़ का, अरे क्या हो गया, 1 करोड़ का आप ये कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना। अरे क्या हो गया, कट गया क्या? हाँ ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, अभिजीत बोल रहा सर जो मैरिज नहीं किया है, जो मैरिज नहीं किया वो कुछ भी कर सकता है। तो मैरिज नहीं किया वो राजा है, इसको ले सकते हैं बिजनेस को। अरे आप जानते हो ना स्थितो, आप लोग सब जानते हो ना स्थितोपति, यू नो ऑल दिम, एवरीवन प्रोबब्ली दे नो, जो मेरे टेलीग्राम चैनल में है। ही जस्ट 21-22 और हर एक महीना ना वो जो 3 करोड़ का ट्रेड संभाल रहा था उसका फैमिली का, हर एक महीना 8, 9, 10, 12, 14 लाख तक कमाता था पर मंथ। अब नौकरी करेगा तो अब वो पढ़ाई करने के लिए चला गया सिम्बायोसिस। सो ही इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यंगस्टर्स डूइंग वेल। फाल्गुनी करके है मेरे एक बंदा है, वो भी 25-26 साल का है, वो भी कंसिस्टेंटली दे आर मेकिंग प्रॉफिट। तो यही स्ट्रेटेजी करते हैं या कुछ और भी करते हैं? नहीं, वो मेरे वाला भी करते हैं कुछ और भी, वो श्रेयास बांदी का भी स्ट्रेटेजी वो लोग करते हैं। वो लोग बात कर रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन स्टॉक सिलेक्शन पे मेरा रह गया था, स्टॉक सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? स्टॉक सिलेक्शन में बोला ना, जिसमें मेरे को इंफॉर्मेशन रहता है, मेरे को पता है, और एक दूसरा चीज है मैं IV देखता हूँ, ये दोनों जब मिल जाता तब मैं स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जब आप करते जाओगे ना, द मोमेंट, देखिए सबसे बड़ा इजी है ना, आप करते जाओगे ना आपको इतना आइडिया मिलेगा ना, आपको मेरे से ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव में। आप नहीं करके खाली सवाल डाउट करोगे ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये दैट इज द मेन माइंडसेट। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड सर, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोला सर। सर ये कोट सर आपने बोल रहा है कि कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सेलिंग कर रहा है और एक्सपायरी का ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। कुछ दिन से पहले आप शायद बोल रहे थे कि ऑप्शन एक्सपायरी में जो एक्सपायरी आते हैं ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अभी नहीं, मैं छोड़ दिया हूँ, मैं 2 साल से बंद कर दिया हूँ। मैं एक्सपायरी ट्रेड नहीं कर रहा, 0 DTE, 0 डे टू एंड, वो वाला ट्रेड बंद कर दिया हूँ मैं। और वो दूसरा किसकी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं? आपने किसका नाम बताया था? 0 DTE। श्रेयस कुमार। नहीं सर, वो दूसरा जो आपके स्टूडेंट है, जो आपके भी करते हो दूसरे के भी करते हैं। वो ये करता है, वो मेरा वाला स्ट्रेटेजी भी करता है, और वो अपना एक है ना, आप देखे होगे श्रेयास बांदी करके, बट वो अपना खुद ट्रेडिंग बंद करके दूसरा बिजनेस में चलेंगे अभी। क्योंकि वो लोग जब शुरू किए थे ना, वो लोग क्या करते थे, इंट्राडे करते थे। उस समय 8 टाइम्स 16 टाइम्स ब्रोकर दे देता था पैसा, तो थोड़ा सा पैसा में मूवमेंट होगा ना, 1 रुपया, तो एक दिन में उनको 20, 40, 50 हजार रुपया मिल जाता था। आजकल तो कोई देता नहीं ना, एक 1 टाइम मिलता, आपका जितना पैसा उतना ही मिलेगा, नथिंग मोर। वो इंट्राडे वाला का जमाना चला गया। हाँ जी, ओनली जीरोधा। नहीं तो बाकी बचा हुआ पैसा सर हम बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, वहां से भी इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, कर सकते हो आप, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी पैसा आएगा, उसको आप इसमें लिक्विड फंड में डाल दो। सर स्टॉक सिलेक्शन के लिए परफेक्ट IV कितना होना चाहिए? सर IV कितना होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए? IV नहीं, देखो अभी अगर 15, 20, 25 चल रहा है ना, जब VIX, इंडिया VIX, तब 40 होना चाहिए। जब नीचे रहेगा ना, जब इंडिया VIX 10 रहेगा, तब आपको 40 हार्डली एक आदमी मिलेगा, तो तब आप 35 तक चले जाना। सर जैसे हिंद कॉपर में 70 चल रहा है इस टाइम, लास्ट टाइम मैंने हिंद कॉपर की ट्रेड करी थी, बट इस मंथ में मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बैन हो गया है वो। बट मेरे पास उसकी कुछ क्वांटिटी इक्विटी पड़ी हुई है, अप्रॉक्स 6600 क्वांटिटी। वो कल परसों खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, 21 को खुल जाएगा। 21 को नहीं खुलेगा तो 22 को गारंटेड खुलेगा, 21 को नहीं खुलेगा तो गारंटेड 22 को खुलेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन सर, इसको सर हम फुल टाइम एज ए करियर ले सकते हैं अगर हमारे पास 30-40 लाख कैपिटल है तो? उसके बाद मैं बताया ना, और क्या चाहिए? यू आर मैरिड? मैरिड है? नहीं सर, मैरिड नहीं है। अच्छा, बैचलर। हाँ, आप कर सकते हो। आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो फिर पढ़ाई करो थोड़ा, खाली मेरा स्ट्रेटेजी मत देखा करो, थोड़ा मैंने नॉलेज लो, मैंने फाइनेंस के ऊपर में नॉलेज लीजिए, अच्छा किताब पढ़िए, ठीक है ना, जस्ट टू गिव यू साइकोलॉजिकल, ये बाकी कुछ नहीं चाहिए।
मेरे वाला में प्रॉब्लम लॉस क्यों नहीं होता? हम लोग तो इन्वेस्ट करते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो पैसा आ ही जाता है। दैट इज व्हाट हैपनिंग विथ मी। मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा शेयर है तो पैसा ऊपर जा रहा है, मैं पैसा कमा लेता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा वो सीखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा सा कोई कोर्स, मैंने किसी के पास मत जाइए। ये साले बहुत लुटेरे बैठे हुए हैं यूट्यूब में, सब 1 लाख 2 लाख रुपया लेकर आपको बस बोलेंगे कि भाई आप मेरे से ट्रेनिंग लो। वो ट्रेनिंग लेकर कोई एक तो वाधवा करके है, मेरे पता नहीं आप लोग यूट्यूब में उसका वीडियो देखा नहीं, उनके बाल सफेद बाल है। हाँ, वो कम से कम 20-25 लाख रुपया खर्चा करके घाटा में था, फिर बाद में अपना जैसा कुछ सोचा किया तो फिर पैसा कमा रहा है, ठीक है ना। तो हर एक आदमी ना कंफर्टेबल रहना चाहिए, इफ यू आर कंफर्टेबल। बट आई विल टेल यू, आप कम से कम काफ़ी बड़ा अमाउंट का एक तो इंश्योरेंस कीजिए, बड़ा अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस कीजिए, और आप अपना खुद चलने के लिए कम से कम 12 महीना या 24 महीना का पैसा अलग रख लीजिए। फिर उसके बाद 30-40 लाख हो रहा तो चलेगा। बिकॉज 30-40 लाख में ना आप अगर पैसा प्रॉफिट हर एक महीना निकाल लोगे तो आपका तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है ना। कैपिटल तो वही 30 लाख, मतलब आज का दिन में 30 लाख, अगर 15 साल का बाद भी 30 लाख रहा तो क्या वैल्यू है उसका। मेरा जो है ना, आई एम नॉट टेकिंग ऑल द मनी फ्रॉम द, मेरा लास्ट ईयर मान लीजिए 43 लाख प्रॉफिट हुआ, तो मैं हार्डली उसमें 10-12 लाख खर्चा किया, बाकी सब प्लॉड इन। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पैसा कैपिटल बढ़ेगा कैसा? तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड आइडिया। बिकॉज आज 30-40 लाख रुपया मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं भैया। हाँ, 1-2 करोड़ रुपया। और पिता, हाँ, और एक चीज है, इफ यू आर गॉट पेरेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट है, यू हैव गॉट पेरेंटल प्रॉपर्टी, तब आप कर सकते हो। बट वो सब अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, डोंट डू इट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप कवर्ड कॉल शॉर्ट स्ट्रैगल बताते हैं कि कुछ शेयर ले लिया फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो आप ऐड करते जाते हैं। जैसे अभी इन्फोसिस का शेयर है, अभी 1400 पे है, तो मैंने 1400 का पुट सेल करके 1380 का पुट बाई कर लिया और ऊपर में 1600 का कॉल सेल कर दिया। ठीक है सर, अभी जैसे धीरे धीरे इन्फोसिस ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी ऐड करते गए, लेकिन अगर मंथ एंड जाते जाते अगर 1390 पे आ गया तो फिर नेक्स्ट मंथ में क्या करना है सर, या ट्रेड क्लोज करना है, क्या करना है? कुछ नहीं, नेक्स्ट मंथ के लिए इस महीना का जितना है ना कॉल और पुट सबको बंद करो, नेक्स्ट मंथ को शिफ्ट करो। और एक बात है ना, और एक चीज ध्यान में रखो, सुनिए, डोंट गो बाई व्हाट आई एम टेलिंग ना। वो माने ऐसा नहीं कि ब्रह्म वाक्य नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा अपना भी देखो। मान लीजिए आपका जो पुट सेल किए हो, धीरे धीरे जब इन्फोसिस ऊपर जा रहा है, 1500 तक पहुंचा, 1600 नहीं हुआ है, 1500 तक पहुंचा, तब आपका जो पुट है ना, दोनों कॉल बाय, उसमें अगर आप देख रहे हो कि 4-5 हजार रुपये का प्रॉफिट हो गया है, उसको क्लोज कर दो ना जब वो 1500 पहुंचा है। वेबिनार आई विल कॉल यू। एक्चुअली एचडीएफसी बैंक में मेरा सर सिमिलर है सर, कि मैं लेते गया 1550 तक गया, वेबिनार सर एचडीएफसी बैंक 1450 भी आ गया है, तो उसमें मेरे को समझ में नहीं रहा क्या करूं। जैसे एचडीएफसी बैंक 1450 में लिया था सर, धीरे धीरे बढ़ते गया, लेते गया, 1550 तक गया, मेरा 1600 का कॉल सेल था, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे आ गया, तो अभी मेरा 1450 ही बाई प्राइस मेरा एवरेज प्राइस है। उसको तो मैं बोला ना, मैं सेकंड कॉल सेल करो ना, मैं जब बोला नीचे चल जाता तो सेकंड कॉल सेल कर देना चाहिए, और फिर नेक्स्ट मंथ फिर से इसी साइकिल को रोटेट कर देना। हाँ, कर सकते हो। इफ यू हैव गॉट शेयर, अगर आपके पास कुछ शेयर्स है तो फिर नेक्स्ट मंथ को उसी में करो। मैं तो कुछ शेयर में रेगुलरली करता हूँ भैया, जैसा कि HL रहा, BL रहा, कोल इंडिया रहा, ये सब तो मैं रेगुलरली हर एक महीना में कैरी फॉरवर्ड करते जाता हूँ इसको। HL सर आपने इस बार लिया था सर, तो एक ही दिन में 8% भाग गया था, तो उसमें सर आप कौन से लेवल में कैसे करके ऐड किया सर? मैं सबसे पहले मैं लिया था जब 4000 का नीचे था, फिर 4010-15 था, फिर 4080 में लिया, फिर उसके बाद 4300 में लिया, फिर और बढ़ने लगा तो फिर थोड़ा सा 25 शेयर ले लिया, अब बाकी मेरा 125 शेयर 4500 में लिया। सो नाउ माय एवरेज इज 4280 और समथिंग ऐसा है। डिस्प्ले आपको याद होगा सर, आप इसका वीडियो बनाए थे तब HL 3000 के आसपास चल रहा था लास्ट टाइम, एक बार आप। अरे वो मैं कर रहा हूँ, HL का मैं 3 साल से कर रहा हूँ। HL जब 1900 रुपया था तब से कर रहा हूँ। लिया था आपके साथ फॉलो करके निकल गया, फिर 3200 के आसपास, तो अभी लगता है कि वो मिस हो गया, अभी होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं सबको, सबका मिस होता है, मेरा भी मिस होता है, डोंट बॉदर है, मेरा भी मिस होता है, चिंता मत। मेरा टाटा पावर में कितना मिस हो गया, पहले मैं टाटा पावर हर एक महीना करता था।
So sorry for the interrupt. I think we have a wider audience across. Yeah. कोटक बैंक में सर अभी कर सकते हैं क्या? या अच्छा, वहाँ जो अभी पूछ रहे थे वाइडर ऑडियंस, हाँ यू प्लीज गो अहेड। सर कोटक बैंक में अभी हाँ कर सकते हो भैया, कर सकते हो, डू क्या सिक्योर कवर्ड कॉल, नो इशू। ओके, थैंक यू सर। या somebody was asking me question. Yeah sir. Yeah. Sir, I think you have a wider audience, right? Maybe if you provide in English, right, your response. I'm also replying in English also, bhai. I started in English, and I am also. You ask me question, I will reply you in English. Yeah, tell me. Yeah. Even right, audience is asking in Hindi, right? I think that's okay, but the theme is same, na. When I started the meeting, I said what is to be done. That is the main thing. If you have got any question to that, you ask me on that. So I will clarify that. They are asking something repeat thing. Yeah, they are asking something which they have got their personal issues. That is not for all. That is their personal issues. Yeah. Sir, Abhijit speaking. नहीं कोई पूछ रहा था. Somebody was asking me question ना. Let him. Sir, Karanjo this side. Yeah. Sir, last month I did this bull call spread in HEL. Yeah, go ahead. So I was in like profit, price went up. Yeah. So, but I did not give the consent to my broker. Okay. To square it off. So yeah. So why are you trading if you are not doing it yourself? And when they squared it off, sorry. If you don't do your own trade. No, I do my own trades, but I forgot to, at the timeline passed, I forgot, because of illiquidity, I could not exit this bull call spread. Liquidity was not there. So what happened? I just wanted to understand how I could better exit this bull call spread. I told you one thing, if you are not able to close, automatically exchange will close it on the expiry date. After 3:30 p.m. Okay? Yeah. Automatically it will be done. Automatically, when it was closed, I was in about 7,000 profit, but in auto close, I ended up with 6,000 loss. So I have shared the picture as well in the discussion group. No, that I have not checked because there are so many messages. At times I don't. You have to directly. But anyway, please, if you are a trader, be alert. I was just telling na, if you cannot do both the thing. आप अपना नौकरी और ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो. So if you are trading, then be alert. You cannot take the liberty of forgetting something. It can be very dangerous. I will tell you. There is a gentleman who was with us. He is now no more trade. He is a businessman. He had about 2-3 crore rupees investment and trading. He was doing this. Okay. He fell sick during the last and that day there was some crash or something. Zerodha closed all his trades. All his trades. 2 crore worth of shares were sold by Zerodha. जैसे कि उसका शॉर्ट हो गया उसका मार्जिन. Then he paid the balance some 2-3-5 lakhs rupees. Then all the shares to be brought back. तो ऐसा मत कीजिए. If you are trading, then be alert. That is the only advice I can give you. और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि close your trade yourself rather than leaving it to your broker. I always say, and do it much before the expiry week. मतलब कि हफ्ते भर से मैं उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, बट वो क्लोज नहीं हो पा रहा था लिक्विडिटी की वजह से. तो मतलब कि कब हमें पता लग जाएगा कि भाई इसको क्लोज कर देना चाहिए. That is why you should always. Which was that share? Can you tell me which share was that? HL ही था. HL. Why it was not liquid? HL was a very liquid share. Up 3,700, 3,800 were liquid, quite liquid. सर मेरे पास 3,540 का था. क्या था? पुट था या कॉल था? दोनों था ना. 3,540 का कॉल और 3,580 का कॉल. I don't understand how it could happen. 3,580 का put call. Either it will be put or it will be call. It cannot be put and call. कॉल दोनों कॉल था सर. 3,540 का कॉल बाय करा था, 3,580 का कॉल सेल करा था. वो थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान में रखे.
Don't do this odd. You do it either 3500 or 3600. Don't do this 20 rupees, 40 rupees वाला 3000 वाला शेयर में. Don't do that. In 2000 वाला, which is more than 2000, you go by 100. 2000, 3300, 3400, 3600, like that. Not 3420. Don't do that. That will be quite risky. Don't do that. सर पराग बोल रहा हूँ, मैंने देखा है वो जब एक्सपायरी होता है ना सब ये स्टॉक में और इनकम मनी हो जाता है ना बहुत, तो आपको इनकम मनी प्राइस में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ऊपर करके लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो आल्गो आ जाते हैं. आप इनकम मनी डालोगे ऊपर आल्गो आ जाएगा. थोड़ा बहुत लॉस लेने के लिए तैयार रहिए. अभी मैं थोड़े दिन पहले थोड़ा तो लॉस yesterday I'll tell you my experience. Yesterday Nabin Florin started going up suddenly. Okay, मैं उसमें जितना प्रॉफिट लेने का था ले लिया था, बट मैंने क्या कहता था, दरोजे what do you call that, दरोजे कॉल I sold at 3540. भाई 3540 दिखा रहा है 28. Okay, it is showing 28, but the buyer is sitting at 53. मैं क्या करूंगा? मैं पहले 28 में दिया. No, for 5 minutes, no change. Then I increased to 33, no change. 35, no change. 40, no change. 43, no change. 47, closed. At least 53 तक मेरे को जाना नहीं पड़ा. 47 में क्लोज हुआ. मेरा सेल हुआ था 40 में, बाय हुआ 47 में. 7 into 150, 1000 रुपया लॉस हुआ. चलो यार, छुट्टी तो मिला. तो this way you have to go on. If you have got stock like this, you go on giving various price at various interval, then it will be picked up. ऐसा कि नहीं होगा. और आप बोलोगे कि नहीं मेरे को इसी प्राइस में करना है, it may not be possible. And second thing, go for the strike price which are liquid. So go for either, if it is below 1000, go for 50 or 100, or if it is 2000 or 3000 go always by 100. And if it like OFSS, somebody was talking about OFSS, there it is 500 points. 7500, 7000, 8500, 9000, like 500 point gap. You cannot go there for, if you are, अब ले लिया तो फंस गया आप, समझ रहे हो. मिल जाएगा आपको से. आप देखो जून का निकालो, आपको वहां मिल जाएगा 7560. अरे यार वो आज कोई दे रहा है, वो आपको ना उल्लू बना रहा है 7560 में. एंड इफ यू उसको सेल कर दिया उस प्राइस में, आप फंस गए हो. सो बी केयरफुल. आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो. यू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस which is liquid today, and even if it goes in the money, it will remain better liquidity will be there. Select that way. Don't go by this बड़ा शेयर में 20, 30, 40 रुपीज का ये मत कीजिए. सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का बुल मार्केट चल रहा है, वो चलेगा अभी कुछ टाइम तक. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कभी एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे 1.5-2 साल तक हम बियर मार्केट में रहते हैं, 10-15% नीचे गिरता है, कुछ स्टॉक्स 20-30% भी गिरते हैं. तो उस फेज के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी डिजाइन की है? क्योंकि अपनी जो स्ट्रेटजी वो मोर ऑफ अ बुलिश है. हाँ, इट इज बुलिश स्ट्रेटजी. कोई उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है. कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सच. हाँ, वैसा नहीं होता है. हाँ, ये वो कभी वो आता है. एक बार लेमन ब्रदर्स, यू रिमेम्बर 2007 लेमन ब्रदर्स, दैट स्टोरी. सो दैट टाइम इट रिमेन 1.5 years. From 7,000 something to it came down to 4,500 Nifty. So that was a big, माने भयंकर था वो period. So only investment, if the shares are good, sit, enjoy करो, वो अपने आप आ जाएगा. Don't bother for 1.5 years. And for your information, let me tell you, Japanese market from 30,000 to 15,000 it went. It took about 20-25 years. From now they have come up above 30,000. That is there about 25 years ago. They were once upon a time they were 30,000. Then they came down to 15,000. They remained there for years together. They have a very, because they are in a deflation market. So लोग का बहुत लंबा रहा था उनका bear phase, काफी लंबा रहा था. They are communists. They are communists. सर मेरा एक साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है. Yeah, please.
लास्ट मंथ में सर मैंने डिक्सन का ट्रेड लिया था 8000 पे। वो 2 दिन में ही सर शूटअप हो गया और 8500 का कॉल सेल किया हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने 8300 पर तक मेरा पूरा लॉट आ गया था। तो और पुट का प्रीमियम इतना डाउन नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही डाउन हुआ था। लेकिन फिर जैसे ही मेरे पास शेयर्स आ गए सर, दूसरे दिन से वो मेरे पास ज़्यादा इसमें करता हूँ, 4-5 शेयर्स में ही मैं ट्रेड करता हूँ। 30 लाख मेरा कैपिटल है। तो उसकी वजह से मैंने वेट किया, उसको स्वैप नहीं किया। लेकिन उसके जैसे ही मेरे पास लॉट आया, उसके दूसरे दिन से वो डाउन आना चालू हुआ है, 8000 तक फिर से आ गया। तो इस कंडीशन में सर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? आज क्या है? आज डिक्सन का प्राइस क्या है बताओ? नहीं, अभी तो हम अरे बोलो ना, 1 महीना में ना, जस्ट इन 1 मंथ ना, साइकोलॉजी इज दैट इट इज अ वेरी गुड शेयर, इवन इफ इट हैज कम डाउन, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, रिगार्डिंग वो शेयर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल अगर ऐसा होता है तो साइकोलॉजी, अभी मैं उस शेयर में रुका इसलिए अभी ठीक है, लेकिन अगर नहीं रुकता था तो प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसलिए मैं पूछता हूँ कि साइकोलॉजी कुछ नहीं यार। आई एम टेलिंग ना माई सेल्फ, मैं जीरो था, मेरे पास GTV है, मेरे पास IEX है। पिछले 1.5 साल से 240 में 240 का शेयर 140, 130, 150 में है। 2 साल से बैठा हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं? थोड़ी मैं मैजिशियन हूँ कुछ। एंड दैट इज द रीजन I always say that you should have enough capital and don't block your trades with buying the full lot. Never buy it. But कभी कभी ऐसा हो जाता है, the moment you buy the share, price goes down much below. So be careful on that. Otherwise आप उसको स्टॉप लॉस लगा कर निकल जाना अगर आपको लग रहा है ना बहुत नीचे जाना है। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया बुल हाउसिंग, iBull हाउसिंग, so there was a bad report come like the Delta Corporation. द गवर्नमेंट पेड, उस कंपनी का साला प्रॉफिट है 150 करोड़ का, और उसको क्लेम आया, गवर्नमेंट भेजा 1700 करोड़ का ये नोटिस। वो क्या होगा उसका क्या होगा उसका हालत? निकलो भाई लॉस में। आई बॉट इट एट 180, 286 और 186, देन 40 रुपीज नीचे आ गया तो निकल गया। दैट इज ए लॉस। होगा, ट्रेडिंग में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो जैसे आपने एक वीडियो में बताया SBI के लिए, एक मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज। आपने IEX का भी, थैंक यू, जैसे आपने अभी IEX का एग्जांपल दिया ना, मेरे पास भी लाल पैच की डिलीवरी ली थी मैंने। तो जैसे एक बार अपने वीडियो में एग्जांपल दिया कि SBI को कर दिया था आपने एक एग्जांपल, एवरेज करके उसको आई रिमेंबर डबल कर सकते हैं। तो क्या लाल पैच लैब में आपको लग रहा पोटेंशियल है उतनी कि वो? नो, उसका मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं। IEX की तरह नहीं, उसका मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं है। इवन IEX का में प्रॉब्लम है। IEX मैनेजमेंट इज वेरी गुड, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भी जो नया रूल आ गया ना, तो IEX में अभी भरोसा नहीं है। इवन 150 में एवरेज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या बोला पहले? IEX was monopoly, just like IRCTC. Today it is not monopoly, so that status is not there. But they are doing, every month they are doing good. That is why the price has come up. मैंने 140 से 158 हो गया, 159, 19 रुपया बढ़ गया in 2 days. ठीक है ना? So that way we have to wait. We can't do anything there. Like it is a mutual fund. If the market has gone down, what you will do with the mutual fund? So you have bought shares, portfolio. Market has gone down. What will you do? You have to wait. The same thing it applies here in mind strategy. You have to wait. But in लाल पैच लैब की जैसे मैनेजमेंट ठीक नहीं है ना, और उसका अरे वो ठीक नहीं है, मतलब उतना भी खराब नहीं है भाई। वो तो बहुत नीचे गया था, अभी तो काफी 2700 हो गया ना, 2600 2700 हो जाएगा कभी। वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उसको एवरेज कर नहीं, एवरेज मत कीजिए, नॉट इन दैट। आप एवरेज करोगे टाटा जैसा कंपनी में जो अच्छा मैनेजमेंट है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तभी वहां एवरेज करना है। SBI वाज दैट काइंड ऑफ कंपनी, बट यू कांट डू दैट इन लाल पैच लैब। यू मे डू। आप बोलोगे कि रंजीत महाती तो मना किया था लेकिन मैंने कर दिया, मेरे को फायदा हो गया, हो सकता है। नहीं, आई रेस्पेक्ट यू लॉट, आई विल ओबे यू। तो मेरे पास IEX का भी एक लॉट है, तो उसको भी ना एवरेज करूं, फिर उसको वेट करते हैं जब देखिए उसको मैं क्यों बोला IEX में मैं बोलता हाँ आपको, मैं क्यों नहीं बोलता रहा हूँ, बिकॉज वो जो प्रॉब्लम था ना, वो जो इशू था ना, वो इशू परसिस्टिंग, जो एनर्जी का जो मिनिस्टर है ना, ही गेव इट भाई बढ़िया 170 तक आ गया था एक बीच में, 1-2 महीना पहले 170 तक। वो साला एक तो सडनली वो कैम नहीं,
उसको नहीं दिया जाएगा, वो तो सबको, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेड। गया नेक्स्ट डे डूम। और ये सब चीज का कोई रास्ता नहीं। इफ यू आर इन द स्टॉक मार्केट, प्लीज रिमेंबर एनीथिंग कैन हैपन, प्लीज रिमेंबर दैट। सर आपका एक एनएमडीसी वाला ट्रेड है जहाँ पे आपने रेशियो बनाया हुआ है और 1000 शेयर्स आपने लिए हैं उसके 276 पे, और तो वो आपने किस मतलब आप कब ऐड करोगे? व्हाट इज योर माइंडसेट? कोई मैं बोला ना अपने आप, वो क्या बोला, कौन सा शेयर, नाम क्या बताओ? एनएमडीसी। ओ एनएमडीसी वो क्लोज हो गया। वो जो लिया था वो सब क्लोज करके प्रॉफिट ले लिया। अभी नया आया हूँ, कल से लिया हूँ। आपका उसका आप देखा होगा मेरा पोस्टिंग। कल ही वाला है सर? हाँ कल ही वाला। मैं 1000 शेयर लिया हूँ, 1000 शेयर लिया था कल। उसका लॉट है 4500। ठीक है, तो आज मैं क्या ना, वो 7-8 रुपया बढ़ेगा ना, मैं 500 शेयर ऐड कर चुका हूँ, 1500 हो गया मेरे नेक्स्ट है। क्योंकि मेरा गैप नहीं है 70 एंड 300, 30 रुपीज ओनली है, समझ गया ना? मेरे को 4500, आई हैव टू बाय 4500 शेयर्स, बट आई हैव ऑलरेडी बॉट 1500। एवरेज प्राइस इज थोड़ा कितना होगा, 78 76 होगा, मैं देख लूंगा, छोड़ो, दैट्स नॉट इमैटेरियल। फिर माय नेक्स्ट 1000 शेयर आई विल बाय एट 187, 287। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2500। ठीक है, नाउ 2000 आई विल बाय एट 300। 2000 बाय 300? या ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ऑलरेडी मैं उसका कर दिया हूँ, उसका जीटीडी लगा कर रख दिया हूँ। मैं करूंगा नहीं, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑर्डर इन द जीरोधा सिस्टम में डाल दिया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन लेट में मार्केट देखूं तो देखो साला गैप अप होकर चला गया ऊपर, फंस जाऊंगा मैं। जैसा कि अभी मेरे को डर है 21 तारीख को अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया बीएल का, देन आई मे बी इन अ प्रॉब्लम। इसीलिए आज 500 शेयर खरीद लिया। मेरे को लगा बाई चांस साला 2000, मैं 1500 का रिस्क ले लूंगा, और बाई चांस पूरा 2000 का तो और ज्यादा लॉस होगा ना। तो फिर भी चलो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या है। Hello. Sir, one request from my side, sir. This is Kanad Rajai. I know it is a hectic job for you, but if you arrange a interactive session like this once in a month, it will be really help a lot. Actually, you must thank Ram जो हमारे है ना, राम जी है, मेरे को रिकमेंड किए थे, क्या हम लोग एक क्लास लेना चाहिए क्या? तो मैंने दैट टाइम आई वाज इन Very good. So he recommended that. I said, okay, let us do it. That's why today I am doing it, and we can do it at every 1.5 At months least या 2 once in a month, sir. If we gather, it will be very helpful for us. Sir. ठीक है, I'll do that. I'll try to do. राम आप है क्या? ऑनलाइन है राम? Yeah, I am here. Yeah, so thank you very much राम for this session. और वो लोग बोलते हैं कि महीना में एक बार करना है, तो let us try, let us see. But very few people join, sir, when we do it every Yeah, month. हाँ, एवरी मंथ 2 महीना में एक बार करेंगे, 2 महीना में एक बार करेंगे, हाँ 2 महीना में। चलो, Okay. हेलो सर। यस सर, गुड सर एक चीज, क्योंकि आप सर मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टर है, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो तो साइड का है, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए ओवरऑल बुलिश स्ट्रेटेजी है। तो सर कोई सेक्टर स्पेसिफिक आप कुछ देखते हैं क्या कि इस सेक्टर कैसे? आज मेरा आप अगर डेली मेरा रिपोर्ट नहीं देखोगे ना, बहुत गड़बड़ है। डोंट आस्क मी क्वेश्चन, आज ही मैं लिखा हूँ सेक्टर, प्लीज रीड माय मैसेजेस। आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरे को ये सब रिपीट, ये सब आता ना, मैं आजकल जवाब देना बंद कर दिया हूँ मैं टेलीग्राम में। टुडे आई हैव पोस्टेड कौन सा सेक्टर में मैं करूंगा। आप देखा है आज का मैसेज मेरा, देखा है? देखिए प्लीज, मैं जब लिखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फालतू इधर उधर का लिखता नहीं हूँ। मैं कभी कभार थोड़ा जो रिप्लाई देता हूँ ना, तो कुछ नया, कुछ दिमाग में आता तभी लिखता हूँ, अदरवाइज नहीं। समथिंग जो मेरे को थोड़ा स्ट्राइक करता है। तो जो एक्स में जो लोग है ना, पर डे वो लोग कम से कम 50-60 देते, 40-30 ऐसा। मैं 1 2 3 मैंने ओरिजिनल चीज, रिप्लाई इज डिफरेंट थिंग। देखो भैया, एक चीज है, मैं वेरी बुलिश हूँ डिफेंस में, ऑल PSU स्टॉक्स, बट वेरी बुलिश हूँ डिफेंस में। डिफेंस में मुझे और भी 2 शेयर अच्छा लगते हैं, लेकिन आई डोंट हैव मनी फॉर देम। वन इज मजगांव टेक और एक है
कौन सा एक है, तेजस टाटा का, उसके लिए पैसा नहीं है। मैं करता हूँ ये ट्रेड, तो मेरे को पैसा चाहिए इसके लिए, तो आई एम ओनली डूइंग HAL एंड BEL, ठीक है। भारत फौज को मेरे को उतना भरोसा नहीं है, वो भी बढ़ता है, लेकिन अनलाइक ये BHEL और इनका जैसा रिजल्ट वो दिखा नहीं सकता है भारत फौज। और दूसरा चीज़ है, मेरे को पब्लिक सेक्टर में मोस्ट ऑफ द शेयर दे आर डूइंग वेल। मैं बता दिया कौन सा शेयर आई हैव गॉट। देन आई हैव गॉट, अगर इंडिया बढ़ेगा तो बैंक भी बढ़ेगा, तो बैंक भी इज गुड। देन हाउसिंग में DLF का कोई कंपैरिजन नहीं है। DLF कुछ भी कहीं भी जा सकता है, जितने बार डाउन होगा आप खरीदो उसको, और वो देता है मौका, 100 पॉइंट का मौका देता है। उधर उधर मत करो, लो उसको DLF, और उसका बढ़िया प्रीमियम मिलता है। 100 रुपीज ऊपर में, 100 रुपीज नीचे में भी मस्त प्रीमियम मिलता है DLF में। उसमें खाली स्ट्रेंगल करने से भी पैसा आ सकता है, लेकिन मैं आई विल नॉट रिकमेंड दैट, ठीक है। नाउ कम्स टू बैंक का बाद सर्टन केमिकल सेक्टर। एक PI इंडस्ट्री है, जानते होगे, PI इंड, और एक नवीन फ्लोरिन, ये 2 केमिकल में अच्छा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अदर, आज मैं और क्या लिखा था यार, कोई पढ़ के सुनाएगा मेरे को, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, अब सोच नहीं रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ इसलिए। देन आई हैव गॉट इंडस टावर, ये अच्छा है। और क्या बोलते हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसा डिक्सन रहा, मोबाइल फोन का, वो सब करता है काम। उसके बाद जो और बाकी टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं कुछ, वो भी बहुत अच्छा काम करेंगे वो लोग। देन एनर्जी एंड पावर, फ्यूचर में बहुत एनर्जी का ज़रूरत होगा, पावर का ज़रूरत होगा, तो ये जो पावर और एनर्जी कंपनीज है ना, बहुत फ़ायदा देंगे। अभी दे रहे हैं, 1 साल देखो टाटा पावर कहाँ 200 से नीचे लटक रहा था, 220, 230, 4 महीना 5 महीना रहा, अभी देखो 400 के कितना ऊपर चले गया। तो ऑल दीज शेयर्स आर गुड। एक KPIT है, अगर आप यू आर ऑल्सो लाइक समबडी वाज बाइंग शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, तो KPIT यू कैन गो फॉर दैट। ओके सर। हाँ, खत्म। ये हाइड्रोजन फ्यूल का भी सेक्टर का सर। अरे मैं बोला एनर्जी, और आपको बोला ना पावर, तो एनर्जी में आ गया ना हाइड्रोजन। हाँ, आ गया ना वो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, सो आज का दिन खत्म करते हैं। मिस्टर राम, इट्स ओके। Thank you all, each one of you. Thank you very much. You people are encouraging me, तो salute to you, all of you. आप सवाल पूछते तो मैं भी ऑन द अरे वो ठीक है, आप जानते नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ ना, फिर सोचता हूँ अरे इनको बोल दिया, मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यू पीपुल आर द पर्सन जो मेरे को मोटिवेट करते हो अच्छा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेशन सर आपने रिकॉर्ड किया क्या सर? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में थोड़े दिन के बाद। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सर।